us start session 4 of chapter 2, acids, bases and salts. In last lectures, we have studied about reactions of acid, base with metal oxides, acid and base, acid with water, bases with water we have seen. In this lecture, we will study about pH scale, the most important topic of this chapter. From this topic, maximum 3 to 4 marks will come, and it is definitely going to come from this topic, whether objective or 2 marks or 3 marks or 5 marks question. Okay, actually 5 mark questions comes from this chapter, so this topic will be very important for you. It is very easy to understand. It is theoretical topic. Let us start. What is pH scale? A scale developed to measure the concentration of hydrogen ions in a solution is known as pH scale, where P in pH implies potens in German. तो ये pH स्केल है, तो P मतलब पोटेंस होता है. पोटेंस का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल. एंड H मतलब हाइड्रोजन आयंस. हमें पता है कि व्हेन एसिड मिक्स विथ वाटर इट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन. तो उसके बेस के ऊपर ये pH स्केल हमने डेवलप किया है. ठीक है. pH scale ranges from 0 to 14. So if it is 0 value in pH scale, it is highly acidic, and if it is 14, it is highly alkaline. तो ये जो pH scale है वो 0 से लेके 1, 2, 3 and so on till 14, ये रेंज है pH का. ठीक है, 0 to 14. इसके अंदर ये जो होगा 0, वो एसिड से लेके धीरे धीरे एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ है, वो कम होता जाएगा. एंड फिर धीरे धीरे यहाँ से 7 से लेके 7 के ऊपर वहां से बेस बोलेंगे 14 तक. आपको प्रॉपर डिटेल पता चलेगा अभी. द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. तो जो भी सॉल्यूशन का pH हम मेजर करेंगे और 7 वैल्यू आया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन. Acidic solution is represented by a value less than 7 on the pH scale. तो जो भी pH स्केल 7 से नीचे आएगा, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, उसके अंदर आप जो pH पेपर है वो डालो और 7 से नीचे वैल्यू दिखाया आपको, तो दैट मीन्स इट इज एसिडिक. जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक. 7 से ऊपर दिखाए तो बेसिक अल्कलाइन बोलते हैं. Whereas basic solution is represented by a value greater than 7 on pH. तो 7 से ज्यादा होगा 14 तक, वो होगा बेसिक. 7 से कम वो है एसिडिक. एक्चुअली आप बोलोगे सर pH 1 2 3 7 वैल्यू मेजर कैसे होगा? So this value will be measured based on the colors like this. ठीक है. तो ये जो 7 नंबर है दैट इज न्यूट्रल. जो ग्रीन कलर दिखाएगा, मान लो कि पीएच पेपर आपके पास है, आपने कोई सॉल्यूशन में डाला, ग्रीन कलर आया, दैट मींस 7 नंबर के आसपास होगा एंड इट विल बी न्यूट्रल. कोई और सॉल्यूशन के अंदर डाला, आपको पर्पल कलर दिखा, इट विल बी 14, नियर बाय 14. ये 15 है, वो रॉन्ग है, 15 नहीं आता है. तो व्हेन you dip it in the solution and you get 14, what will be the pH scale? Purple color, 14 number, and it will be basic. If you put anything inside it, anything inside the suppose you take a acidic solution but you don't know it is acidic solution, we will measure with the pH scale. pH paper हमने डाला और orange color मिला, तो you can say 3 number और वो है एसिडिक. तो अब कलर के बेस के ऊपर ये पीएच स्केल मेजर होता है एंड फिर बाद में हम उसको बताते हैं वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक.
little bit theoretical part is there in this session. So you have to understand it properly, and it is very easy to understand. An increase in OH minus concentrations in the solution result in increase in the strength of alkali. Hence, the value of a pH increase. तो ये what this point want to say, तो जब भी आप वाटर के अंदर डालोगे बेस होगा तो OH माइनस आयन रिलीज होते हैं, एसिड होता है तो H प्लस आयन रिलीज होते हैं। तो जो OH माइनस ज्यादा आयन रिलीज हुए तो हमें जो pH का वैल्यू मिलेगा, what will be the value of pH? Above 7. So value of pH will increase. Okay, and if it increases, it is an alkali, and we know that alkali is nothing but base which is dissolved in water is called as alkali. Acids give rise to more H plus ions are strong acids, whereas those giving rise to less H plus ions are termed as weak acids. तो कभी भी जब भी हमें वाटर के अंदर एसिड डाला तो आपको एकदम मतलब रेड कलर जैसा दिखा, मतलब उसके अंदर H प्लस आयंस ज्यादा होंगे एंड वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको येलो कलर ऑरेंज कलर जैसा कलर मिला तो आप बोल सकते हो कि इट इज वीक एसिड, एंड उसके अंदर H प्लस जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वाटर में डालने के बाद वो कम होंगे। जैसे वो पीएच स्केल देखा था आपने, 0 रेड से लेके वो येलो ऑरेंज फिर येलो एंड फिर ग्रीन तक जाएगा। Similarly, bases give rise to more OH minus ions are strong base. तो सिंपल है, एसिड में H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कम होंगे तो वीक एसिड है। सिमिलरली बेस के अंदर भी वैसा है, मोर OH माइनस आयन इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेस OH माइनस आयन इट इज वीक बेस। तो ये आपको डेफिनेशन आना चाहिए, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? तो the acid which produce more H plus ion when dissolved in water are called as strong acids. ऐसा definition आपको लिखना है। Similarly for base and weak acid, weak base. Salts of strong acid and strong base are neutral with pH value 7. अभी इमेजिन आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है, एसिड्स एंड बेस के बीच में होता है न्यूट्रलाइजेशन। हियर व्हेन यू टेक, अभी आपके पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट्स मिलेंगे। तो व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, the salt will be neutral and have pH value 7. When strong acid and weak base they reacts with each other, they will give the value of salt which is less than 7 and acidic. यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक होगा एंड उसका सॉल्ट का वैल्यू भी लेस देन 7 मिलेगा। अंडरस्टूड? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा? बेसिक इन नेचर, उसका वैल्यू होगा मोर देन 7। तो आपको इतना पता होना चाहिए, जब भी वीक एंड स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन है तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग, सॉरी सॉल्ट बनेगा एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो सॉल्ट बनेगा बेसिक, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, कंफ्यूजन नहीं आए वो ये आपको ध्यान रखना। अब पीएच स्केल एक्चुअली में कैसे हम यूज करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होता है, विल सी इट नाउ प्रॉपरली। तो ये है प्रॉपर एक स्केल, 0 से लेके जो रेड कलर है स्लोली स्लोली ऑरेंज देन येलो देन लाइट ग्रीन देन ग्रीन, when it comes to 7 it will be neutral.
ठीक है, यहाँ पे जो पूरा पार्ट आपको दिखा रहा है 0 to 6 it is acidic, 0 to 6 is acidic, and 8 to 14 is alkaline. alkaline मतलब basic. Understood? तो ये आपको चीज पता नहीं चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए. आपको पूछे कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ ऑन पीएच स्केल, आपको पता नहीं, इट विल बी बिटवीन 0 to 6. आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछे तो इट विल बी बिटवीन 8 to 14. ये आपको पता होना चाहिए. अंडरस्टूड? अब ये जो डायग्राम नया आया है दैट इज एग्जैक्टली आई हैव टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के अंदर जैसा है वैसा ही सेम लिया है मैंने. अब ये डायग्राम को आपको समझना है तो क्या है कि यहाँ पे जीरो वैल्यू है, तो जो ये ब्लू वाला पार्ट है मतलब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ज्यादा है. जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो तो हाइड्रोजन आयंस कम बन रहे हैं. ठीक है, वैसे उल्टा नीचे आओ OH माइनस आयन, तो यहाँ पे OH माइनस आयन कम है. धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ोगे 14 की तरफ OH माइनस आयन इंक्रीज होते जा रहे हैं. अंडरस्टूड? तो ये पहला पॉइंट था जो आपको समझना था कि हियर ब्लू पार्ट मींस H प्लस आयन एंड दिस व्हाइट पार्ट मींस OH माइनस आयन. यहाँ पे सबसे ज्यादा OH माइनस होगा तो 14 जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे जो जीरो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड. अंडरस्टूड? फिर ये जो एरो दिखा रहा है सेंटर पार्ट न्यूट्रल है, दैट यू नो. जैसे हम ये इस डायरेक्शन में जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि एज यू गो फ्रॉम 7 to 14 what will be the change in the nature of the solution. तो सिंपल है कि the nature of the solution will become basic. सिंपल. फिर ये लास्ट जो है वो पार्ट समझ लो. दिस इज अ न्यूट्रल, अगेन आई एम रिप्रेजेंटिंग इट न्यूट्रल. इफ यू गो ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली H प्लस आयंस भी ज्यादा बनेंगे, तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो OH माइनस आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. तो यहाँ पे उल्टा लिखा है OH माइनस आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम पीएच स्केल के बारे में बात कर रहे हैं. OH माइनस का जरूरत नहीं है, तो H प्लस जो आयन है वो डिक्रीज होंगे. दिस साइड इट विल इंक्रीज, दिस साइड इट विल decrease. Okay, decrease, and this side increase. Activity 2.11, we are not going to do all these things, but I have given the value so that you can use it for your textbook and understanding. Okay, so here we have to just see the things like acidic. मैं डायरेक्टली यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि एसिडिक्स एसिड से ही. तो एसिड्स जब होंगे तो उसका पीएच वैल्यू आप खुद पहले आंखें बंद करके ये सोचो, एसिड होंगे तो उसका पीएच स्केल कितना होगा 0 से लेके 6 तक. नाउ ये एसिड के सामने वाला वैल्यू देखो, आप उल्टा जाओ, ये 5.8 है. ठीक है, तो एसिडिक हो गया तो उसका कलर 5.8 के आसपास कैसा कलर था, येलो जैसा कलर, तो पेल येलो. और ये चीज क्या है, सलाइवा. मतलब आफ्टर मील जो हम खाने के बाद हमारे मुंह के अंदर जब पीएच पेपर रखेंगे तो येलो कलर जैसा कलर दिखेगा एंड उसका पीएच होता है 5.8 एंड वो एसिडिक होता है. वैसे ही लेमन जूस का देखो आपको कलर पीएच पर पिंक दिखता है, पिंक रेड. पिंक रेड मतलब कहाँ पे, 0 के आसपास, 0 या 1 के आसपास. तो यहाँ पे हम 2.5, एग्जैक्ट वैल्यू 2.5 है, तो वो भी एसिडिक होता है. फिर ये कलर्ड एरिएटेड ड्रिंक्स, तो वो भी पेल येलो. पेल येलो मतलब अगेन 5 या 6 के आसपास, तो है 6, वो है एसिडिक. कैरेट जूस, कैरेट जूस जो है लाइट ऑरेंज कलर दे रहा है, लाइट ऑरेंज कलर दे रहा है मतलब इट विल बी समवेयर अराउंड 4 एंड वो भी एसिडिक है. कॉफी, तो आपको पता नहीं होगा कि कॉफी भी एसिडिक हो सकता है. यस इट इज एसिडिक, 5 है.
टोमेटो जूस ऑब्वियसली उस वो खट्टा जैसा फीलिंग आता है, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 4, डार्क ऑरेंज है। अब आते हैं न्यूट्रल, टैप वाटर। टैप वाटर मतलब जो नल में से पानी आ रहा है वो, तो दैट विल बी ग्रीन इन कलर। ग्रीन मतलब न्यूट्रल का जैसा, मतलब होगा, एसिडिक भी नहीं होगा, बेसिक भी नहीं होगा, तो 7 वैल्यू है न्यूट्रल। सलाइवा बिफोर मील, मतलब खाने से पहले जो सलाइवा का टेस्ट करो तो लाइट ग्रीन जैसा होगा, 7.4 के आसपास जो है बेसिक। एंड ये 1 एम का मतलब है मोल्स, 1 मोल्स ऑफ NaOH। उसका ज्यादा डिटेल में आपको समझना नहीं है, मोल्स क्या होता है वो। 1 मोल ऑफ NaOH ऑलरेडी 9th में हमने पढ़ लिया है। डार्क ब्लू वायलेट, डार्क ब्लू या वायलेट मतलब 13 to 14, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। 1 मोल ऑफ HCl रेड कलर, और वो 0 या 1 लिख सकते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अंडरस्टूड? तो सिर्फ ये तो एक्टिविटी था, आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि 0 to 6 जो रेंज होगा उसमें कलर कैसे कैसे होंगे। ठीक है, हमने एक तो रेड कलर से लेके डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, येलो, ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं। फिर बेस के लिए अलग होगा, धीरे से ग्रीन कलर से लेके डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, ब्लू, पर्पल, ऐसे कलर चेंजेस होंगे। ठीक है, ये भी एक आपको इंफॉर्मेटिव इमेज है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये ज्यादा डिटेल में यहाँ पे भी नहीं जाना है, सिर्फ आपको क्विकली समझा देता हूँ कि देखो ये ऑरेंज कलर लेमन का दिखाया हुआ है, टोमेटो, यहाँ पे मिल्क, मिल्क भी न्यूट्रल के आसपास है, देखो 6-7 न्यूट्रल के आसपास होता है। स्टमक के अंदर स्टमक टेबलेट्स, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बता रहा हूँ, ये है स्टमक एसिड, जो एसिडिटी हमें होती है वो। तो वो टाइम पे S1 है, देखो स्ट्रॉन्ग HCl हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड वी टेक स्टमक टेबलेट्स, मतलब एसिडिटी के लिए टेबलेट्स लेते हैं जो 10 के आसपास होता है, तो ये दोनों मिक्स होके न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड जो स्टमक के अंदर पार्ट है उसको न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, बाकी का ये सब अलग अलग चीजें। सोप का 12 होता है, ये ब्लीच जो हम कपड़े के लिए यूज करते हैं उसका 13 के आसपास होता है, ये सब अलग अलग चीज है, आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव इमेज है। Importance of pH scale in daily life. Our body works within pH range of 7.0 to 7.8. तो हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल पीएच कौन सा है? 7.0 to 7.8। इससे कम गया तो भी हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होता है, ज्यादा गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। Living organisms can survive only in a narrow range of a pH change. तो 7.0 से 7.8 बहुत ही छोटा, नैरो, बहुत ही छोटा चेंज है, उतने में ही ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली फर्क करता है। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. This thing you have to remember. 5.6 से कम जो है, जो रेन वाटर आया उसका पीएच स्केल हमने मेजर किया, कलर रेंज जो लाइट येलो और उसके आसपास आता है तो वो है 5.6, और एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा 5.6, जो हमारे पास नहीं होता, साइंटिफिक मतलब इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तब पता चलेगा। इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। And when this acid rain flows into rivers, it lowers the pH of river water. And river water का भी pH लो करेगा। ठीक है, वाटर का पीएच कितना होता है? 7 के आसपास, तो उसका भी पीएच लो हुआ, एंड लो होने के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स है, द सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। उनके लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको चाहिए नॉर्मल वाटर, न्यूट्रल वाटर, बट जो वाटर एसिडिक हो गया तो उनको हार्म करेगा, उनके बॉडी को हार्म करेगा, वो मर भी सकते हैं बहुत बार। पीएच ऑफ द सॉइल, अभी सॉइल का भी एक पीएच होता है अलग से, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। उनको अच्छा ग्रोथ चाहिए, मतलब हर एक प्लांट्स को
एसिडिक पीएच चाहिए, हर एक प्लांट्स को बेसिक पीएच चाहिए, हर एक प्लांट को न्यूट्रल चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सब प्लांट्स अलग अलग पीएच में ग्रो अच्छी तरह से होते हैं। To find out pH required for a healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH of the soil where plants are grown. तो हम हमें जो अलग अलग सॉइल के पीएच चाहिए, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो प्लांट्स ग्रो किए वहां से हम सॉइल निकालेंगे और फिर पीएच चेक करो, तो आपको पता चलेगा सॉइल हैव डिफरेंट डिफरेंट पीएच एंड आल्सो क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट पीएच टू ग्रो. From this you can know which plants are growing in which type of soil. और इससे हमें पता चलता है कि कौन से प्लांट्स को कौन से पर्टिकुलर पीएच में ग्रो अच्छी तरह से हो सकते हैं. तो वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ द ग्रास. तो एक सिंपल ग्रास का हम एग्जांपल लेते हैं कि उसके लिए परफेक्ट पीएच कौन सा है. तो देखो ये जो आइडियल फॉर लॉन्स, जो एसिडिक होगा तो उसका ग्रोथ इतना ही होगा, ठीक है, या अल्कलाइन होगा तो उसका ग्रोथ इतना होगा और कलर में भी चेंज आएगा साथ में. वेरी अल्कलाइन है तो मतलब इसके अंदर देखो कितना छोटे छोटे पार्ट्स आ गए, बहुत छोटा हो जाएगा. एसिडिक भी है तो भी बहुत छोटा होगा और फ्लावर ग्रो होने के चांसेस भी वो टाइम पर होते हैं. तो बेस्ट और आइडियल इज बिटवीन 6.2 टू 7 फॉर लोन्स. ये पर्टिकुलर लोन्स के लिए, ग्रास के लिए ही मैंने बताया और कोई भी प्लांट्स अंदर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है. आपको और डिटेल चाहिए कि कौन से प्लांट को कौन सा टाइप का सॉइल चाहिए, तो यू कैन सर्च इट फ्रॉम द गूगल, बट वो रिक्वायर नहीं है. जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द गूगल. पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये टॉपिक से छोटे छोटे रीजंस पूछते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, या व्हाई वी रिक्वायर एंटासिड्स, व्हाई वी ड्रिंक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो ये सब आपको ये टॉपिक खत्म होने के बाद आंसर देने के लिए सूटेबल, आप परफेक्ट हो जाओगे. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये पता ही है हमें. It helps in the digestion of food without harming the stomach. And this we have studied in chapter 6 कि our stomach produce hydrochloric acid and inside that mucus is also produced which will help the stomach from getting damaged. During ingestion, during indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. तो समटाइम व्हाट हैपेंस, जब जो यंग होते हैं, छोटे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम कम होती है. जब वो बड़े हो जाएंगे, 30-35 की एज क्रॉस करेंगे या फिर बहुत ही स्पाइसी फूड पहले से खा रहे हैं, तो उनका स्टमक क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ एसिड, बहुत एसिड प्रोड्यूस कर लेगा. तो जितना चाहिए उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हुआ है, तो वो तो बचेगा स्टमक के अंदर. तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस एसिड यू विल गेट एसिडिटी. और वो ये वर्ड आपने हर एक ने सुना होगा आपके पेरेंट्स से, एसिडिटी. छोटे बच्चों, आपके फ्रेंड्स ने किसी ने नहीं बोला होगा मुझे एसिडिटी हुआ है, ठीक है, बिकॉज यू आर टू यंग. अभी आप 25-30 क्रॉस करोगे तो ये प्रॉब्लम शायद आप में से किसी को हो. एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल, मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है. टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स. तो इससे हमें रिलीफ चाहिए. ये एसिडिटी जब होता है तो मैं आपको बता दूं कैसा होता है. हमारे चेस्ट के पार्ट पे जो इसोफेगस पाइप है वहां पे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग फील होता है, स्टमक के अंदर बर्निंग फील होता है, वो है एसिडिटी. तो वो एसिडिटी को खत्म करने के लिए वी यूज एंटासिड्स. जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करे उसको बोलते हैं एंटासिड्स. वो बेस होते हैं जनरली. तो जैसे इनो है, दैट इज आल्सो हैविंग अ बेस जो एंटासिड की तरह काम करता है. फिर एक और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके मेडिसिन है, वो मिल्क जैसा ही होता है, तो वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड. जो ज्यादा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है.
मिल्क, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। A mild base is often used for this purpose और जनरली सब लोग ये ज्यादा यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो पहले यूज करते थे मतलब अभी के जनरेशन तक, बट जब से इनो आया है तो छोटे पैकेट के अंदर मतलब कम रुपए के अंदर हम लेके जल्दी से 2-5 सेकंड के अंदर वो एसिडिटी से रिलीफ पा सकते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा कॉस्टली 50-60 रुपीज का आता है, तो हमें एक दो बार ही पीना होता है, तो फिर क्यों परचेस करें, ऐसे लोग सोचकर अभी इनो का ज्यादा यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो मिल इनो के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और वो सब आता है। ये सोडियम कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स जैसे कोई एक चीज है जो अंदर होता है, वो दोनों बेस ही है। ठीक है, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो टूथ डीके कब होता है, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम जाता है। तो नॉर्मल पीएच कितना होता है हमारे माउथ का, 6 के आसपास। ठीक है, जो अभी हमने आगे वाली एक्टिविटी में देखा, 6 के आसपास। एंड आफ्टर ईटिंग वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body। तो जो हमारा टूथ एनिमल है हमें पता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। तो ये कोई बार पूछ लेते ब्लैंक्स में कि किससे, मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, या ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, वो दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ये तो होना चाहिए अंदर। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जब भी ये एनिमल हम वाटर के अंदर डालते हैं तब कुछ नहीं होगा। एनिमल एनिमल ये मतलब हमारा टीथ, टीथ का आउटर कवरिंग, या टीथ के अंदर हम वाटर भर के रखेंगे मतलब माउथ के अंदर, तो भी टीथ को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इज करोडेड व्हेन पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। बट हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम गया तो ये हमारे एनिमल को नुकसान पहुंचाएगा, इट विल डैमेज एनिमल। Bacteria present in mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। तो सिंपल है, जब भी खाने से पहले हम मेजर करते हैं तो वो होता है नॉर्मल न्यूट्रल के आसपास लाइट ग्रीन कलर। व्हेन यू ईट और उसके बाद जो हम मेजर करते हैं पीएच हमारे माउथ का, वो एसिडिक हो जाता है। तो रीजन क्या होता है कि जो फूड हम खाते हैं वो एसिड मतलब जो उसके अंदर बैक्टीरिया, फूड खाया हमने जो चबाया, तो कोई दांत के बीच में भी फूड फंस जाता है, वहां पे बैक्टीरिया वो फूड को यूज करके एसिड प्रोड्यूस करेंगे। वो एसिड हमारे माउथ के पीएच को और कम लेके जाएगा, मतलब जो एसिड होगा माउथ के अंदर ऑलरेडी खाने के बाद पीएच कम हो गया है, और ये बैक्टीरिया फिर से ये पीएच कम और कम कर रहे हैं, तो हमारे टीथ जो है वो सड़ने लगेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं। ठीक है, चॉकलेट खाने के बाद वो पानी नहीं पियेंगे तो चॉकलेट अंदर रहेगी, और धीरे धीरे उनका पीएच कम होता जाएगा और वो सड़ने लगेंगे दांत। बट जो एडल्ट होते हैं हमारे जैसे बड़े, तो वो ब्रश कर लेते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, हर एक जगह पर ब्रश करते हैं टीथ के, तो वो एसिडिक जो पार्ट है, वो बैक्टीरिया है, वो फूड है, वो सब निकल जाता है। ठीक है, एंड जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो बेसिक होता है, जिसके कारण हमारे माउथ के अंदर जो एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो गया है, वो जो टूथपेस्ट है वो उसको कम करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस है उसको कम करने के लिए। ये थोड़े एसिडिक फूड एंड न्यूट्रल फूड देख लेते हैं कि दिस पार्ट, ये जो पार्ट है वो एसिडिक फूड का है, ये पार्ट जो है वो बेसिक फूड का है। मतलब जो बेसिक फूड है वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। अंडरस्टूड? ये देखो,
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सब है। यहाँ पे एक मिल्क ही एक पार्ट है, यहाँ तक अभी अच्छा है, टिल दिस पार्ट इट इज गुड, दिस पार्ट इज गुड। तो इससे ज्यादा आप जाओगे तो वो बहुत खराब हो जाएगा हमारे लिए। अंडरस्टूड। तो वो टूथ को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, जो ब्रश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो माउथ का पीएच है वो कम आएगा। टूथपेस्ट भी बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है, तो इसी के कारण हमारे माउथ का पीएच कम आएगा एंड हम टूथ को बचा के रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक विदाउट गेटिंग डीके। डीके नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक वो रहेगा अच्छी तरह से। तो एक बहुत ही अच्छा हैबिट भी है टूथ को अच्छी तरह से रखने का कि आफ्टर ईटिंग आप ब्रश कर लो, तो वो भी एक बेस्ट हैबिट है। या तो सोने से पहले ब्रश कर लो, जिसके कारण जो बैक्टीरिया होंगे वो सब मर जाएंगे, एंड उठने के बाद सुबह ब्रश कर लो, जिसके कारण जो भी कचरा बचेगा, ये खराब स्मेल होगी, वो सब चली जाएगी। ठीक है, तो दिस विल कीप योर टीथ हेल्दी। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो ये सेल्फ डिफेंस मतलब एनिमल्स जो है वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए ये पीएच का यूज करते हैं। तो पीएच का यूज मतलब कैसा यूज होता है? हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? हनी बी कभी आपको बाइट किया है तो आपको थोड़ा बर्निंग फील होगा। बर्निंग फील हुआ तो कब होता है बर्निंग फील? जब आपके बॉडी के ऊपर एसिड टच होता है तब बर्निंग फील होता है। तो हनी स्टिंग के अंदर भी एसिड होता है। Bee sting leaves an acid which cause pain and irritation. तो इसीलिए हमें पेन भी होता है एंड थोड़ा जलन भी होता है। हाउ वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दिस बी स्टिंग? तो बी स्टिंग को काट, बी जो हनी बी है या कोई बी है आपको काटता है तो आप क्या करते हो? या तो आप की घिसते हो या मिट्टी घिसते हो, या फिर बाद में आपका एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड घिसना है, या फिर आप सॉल्ट भी मतलब घिस सकते हो। बहुत सारे मतलब तरीके हैं। बेकिंग सोडा है, सॉल्ट नहीं घिसेंगे, बेकिंग सोडा घिसेंगे। बेकिंग सोडा बेस है और वो हमारे बॉडी के ऊपर जो बी ने काटा है वो है एसिड। वो एसिड एंड बेस मिक्स होंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इफेक्ट धीरे 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 हमारे बॉडी को रिलीफ मिलेगा। वहाँ पे सूजन नहीं आएगा, पेन नहीं होगा। ठीक है। Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair, अब ये बीज के रिलेटेड था। ऐसे ही एक प्लांट होता है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। ये नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। वो क्या है? वो जो प्लांट है ये हमने देखा एनिमल अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, मतलब पीएच में चेंज लाते हैं। यहाँ पे नेटल लीव्स है, वो भी अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे इजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग द बर्निंग पेन। जब भी हम उसको टच करने जाते हैं वो लीव्स को, तो हमें वो काट, हमें लगता है हमें किसी ने काटा, बट एक्चुअली व्हाट दे डू, दे रिलीज मिथेनोइक एसिड इनटू आवर बॉडी। ये है बी स्टिंग। सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। बी स्टिंग इज एसिडिक एंड अ वास्प स्टिंग इज अल्कलाइन। वास्प मतलब भमरी हम गुजराती में बोलते हैं। तो why can bicarbonate of soda pH 9 be used to treat a bee sting? तो बी स्टिंग जो होता है वो एसिडिक होता है एंड इसीलिए ये बेस यूज करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। ये अल्कलीन है, अल्कलीन है। और वाई कैन विनेगर पीएच 3, विनेगर का पीएच होता है 3, बी यूज्ड टू ट्रीट वास्प स्टिंग। तो ये जो इसका स्टिंग है वो है अल्कलीन, तो उसको हम एसिडिक, कुछ एसिडिक चीज यूज करेंगे। इसका स्टिंग है एसिडिक तो उसके लिए हम कुछ बेसिक स्टिंग यूज करेंगे। ठीक है। और ये थोड़े एग्जांपल्स है जो नेचर में फ्रीली अकरिंग है, मतलब हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे। ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर इमेज दिया हुआ है, सिर्फ आपके समझाने के लिए कि यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए। तो नेचुरल सोर्स, ये नेचुरल सोर्स मतलब कहाँ से हमें मिल रहा है? तो विनेगर, ऑरेंज, टेमरिन एंड टोमेटो।
तो विनेगर के अंदर एसिडिक होता है, वो नेचुरल है, मतलब ये ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, टम्बरिन के अंदर टार्टरिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। एसिड्स के अलग अलग नाम है, कोई बार ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं ये। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, वो पता है। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड, हमें पता है। खट्टे फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, वो है साइट्रिक एसिड अंदर होता है। ये दो जो चीजें है वो दोनों मिथाइनोइक एसिड, और ये दोनों क्यों ऐसे प्रोड्यूस करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए। कभी भी एंड भी बाइट करती है तो छोटा सा पार्ट फूल जाता है, फिर वहां पे थोड़ा बर्निंग फील होता है, ठीक है, रेड कलर का एंड जब खास करके लगता है तो वो मिथाइनोइक एसिड रिलीज करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। अंडरस्टूड? दिस ऑल आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड, हमने नहीं बनाया, वो नेचुरली खुद बॉडी के अंदर बनते हैं, खुद प्लांट्स के अंदर बनते हैं। ओके, that's it about pH scale. Very important chapter, actually you can say, and in fact a very important session of this chapter. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन छोटे एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीज जो आगे ऑलरेडी आगे के सेशन में हमने पढ़ लिया है उसका भी डेफिनेशन में जहां जहां पे जरूरत पड़ा वो रिवाइज किया है। तो please take care, please understand each and every definition and topic in this chapter properly. Thank you and have a great day.